जो लोग बोलते हैं ना कि पुष्पा 2 छपरी है, नहीं, मूवी छपरी नहीं है, कैरेक्टर छपरी है. Do you want to watch the review? The first review? We can sort of segue it properly into this thing. You already know, my friends. Welcome to the world of Goosebumps. Yeah, Goosebump. Yeah, culture. Yeah, masterpiece. Yeah. This is not culture. Okay, this has become a cultural phenomenon. Okay, Yeah. but just the fact that this was you were able to sell this, it's cringy. Sure, without context, So, it's very cringe. okay, basically this gesture alone is enough for people to recognize we are talking Yes, about Pushpa. तुमने एक ब्रांड बना दिया है. ठीक Exactly. है. हाँ, kudos to you. ये this हाँ. is not. हाँ, ये जो पॉज भी बढ़िया किया है मैंने, बट ये जो बताना चाह रहा है ना, इट्स कंप्लीट मिसनोमर. कुछ समझ में नहीं आया इसको, मुझे ऐसा लग रहा है. हाँ, बट लेट्स हाँ. कंटिन्यू. वर्ल्ड बिल्डिंग कर दी और क्या गुटखा चबा लिया भाई, क्या कल्चर दिखा दिया भाई, मजा आ गया. Goosebump. Okay, again. What world building? वर्ल्ड बिल्डिंग भी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि अरे गुटका दिखा दिया, क्या कल्चर बना दिया, तो यू आर ट्राइंग टू से कि ऐसे पीपल एग्जिस्ट नहीं करते इस देश में. And they should not, and these people should not succeed in life? Really? हाँ, That is It's what like you're saying? कि, मतलब this entire statement goes to show that you are basically discrediting the 80% of the population. Yeah, I think the argument this person will make is that you are glorifying all of this. Okay, but then you have to, this is the perspective. Okay, Pushpa is successful because of all the other traits he has, not because he does this or this, or okay, from day one you see that this guy is confident in what he's able to do, his ability. Okay, Okay, even let's- when he's getting fired, he's confident. So, okay, I'll also tell you for a fact that Pushpa as a character became that way because of his circumstances. He was literally stripped away from his surname. He was forced to live alone with his mother as an orphan, completely filled with a life of disrespect, where the place he was living in, everyone took advantage of him, and everyone was they kept on poking him, shaming him, and they drove him to be this way. They drove him Yeah. towards this toxic side of masculinity, and that entire hard exterior which we see, it is a consequence of the circumstances he grew up in. Yeah. But despite that, he is still a good man. That is the character of Pushpa. That he has retained his inner child. He has managed to keep his inner child protected through this entire hard shell. Like it is a trauma response. That is what he's going through. Look at this, like this brother, this supposed brother who has tortured him through his life, Pushpa accepts him. Exactly. वो कुछ बोलता नहीं है उसको पूरे Yeah. लाइफ में. he has never done anything against him. He never raises a voice against him except for that one particular moment in the first movie where engagement के टाइम पे he literally starts. माँ पे बात आ जाती है. हाँ, माँ पे बात आ जाती है, वो बीट करता है. एक्सेप्ट आई पर्सनली फील दैट इज अ वीक मोमेंट बिकॉज वो नहीं होना चाहिए था. बट ओके, एनीवेज इट हैपेंड. बट सेकेंड मूवी में स्टिल वी सॉ दैट इतना डिसरिस्पेक्ट सहने के बाद भी वो उसको इंटरनलाइज करता है एंड ही रिलीजेस इट आउट इनटू द ओपन इन अ वेरी डिफरेंट वे. दैट एंटायर जातरा सीक्वेंस इज एन एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ दैट पेंट अप एग्रेशन एंड पेंट अप Yeah. problems which he has been going through since childhood. So पुष्पा अगर इतना हार, भाई उसका literal physical जो handicap है, it is a consequence of trauma. उसको वो शॉक की वजह से ऐसा हुआ है कि बचपन में 5 साल का था वो, जब उसका वो बड़ा भाई आके उसको इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करता है, तो his body kind of deforms this way. Okay. So Also, at any point does he actually eat गुटखा? हाँ, गुटखा वो खा रहा होता है, गुटखा खा रहा होता है. खाता है क्या? I don't हाँ. remember. अरे वो बेसिकली तू देखेगा ना, तो जब भी देखो वो पान खा रहा होता है और वो थूक रहा होता है, वो गुटखा ही है और गुटखा है, एक okay. वो गुटखा है. और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जब वो गाना चल रहा होता है ना, वो पुष्पा वाला गाना चल रहा होता है इंट्रो सॉन्ग में, जिसमें जब वो तो अपने उसके वो गोडाउन में बैठा होता है ना, तो उस गोडाउन से जब वो बाहर निकलता है तो हाथ में ऐसा वो करके खाता है. Okay. बट वॉट आई एम सेइंग इज कि क्या अच्छा वैसे लोग रहते नहीं है क्या दुनिया में? तू जिस बिल्डिंग में बैठा है, उस बिल्डिंग को ऐसे ही किसी मजदूर ने बनाया होगा जो उसे गुटखा चबाता है. No, is it
Sure, you should not. I agree with this sentiment कि you should not glorify somebody who is eating गुटखा. Okay, but तो फोकस ही क्यों कर रहा है उस चीज पे? बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल थिंग. इट्स मेरे को याद भी नहीं है. ओके नहीं वो छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर गुटखा ग्लोरिफिकेशन से तेरे को इतनी प्रॉब्लम है तो शाहरुख सलमान जो शाहरुख, अजय देवगन और अक्षय कुमार जो गुटखा के एड्स गुटखा करते बेच रहे हैं, हाँ. उनकी मूवीज क्यों देख रहा है तू बैठ के? हाँ, एक बहुत ये वर्ल्ड बिल्डिंग वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है इसको. अल्लू अर्जुन इज नॉट द वन हु इज एक्टिवली Yes. ईटिंग गुटखा. ही इज जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर हु ईट्स गुटखा. Yeah, I'm really interested in just looking at one of the other reviews, maybe of Pathan or Tiger or something from the वही same ना. guy. Let's see. Yeah, अभी अरे तो वही. पुष्पा का कंटिन्यू करते हैं. हाँ Let's continue. या आ गए, हाथ टेढ़ा करके गूज़बम्प आ गए भाई. 3 घंटे 10 मिनट ये जो गुटखा राज का मैं देख के आऊं ना, वर्ल्ड बिल्डिंग, कल्चर बिल्डिंग, ये सब देख के आऊं ना भाई, मेरा हाथ भी लकवा मार गया गुटखा राज की तरह. पीछे से आगे ही नहीं आ रहा है, आगे नहीं. I can bet you $10 he has no idea what world building is. कोई मुझे ये बताएगा कि वैसे तो लखुआ मारा रहता है हाथ में, चाल में, जैसे ही फाइटिंग शुरू होती है बिल्कुल ठीक हो जाता है. पोलियो कहां चला गया. लेकिन भाई एकदम जबरदस्त फिल्म है भाई, मास मसाला फिल्म है भाई. मजे आ गए, सिक्के निकाल के मारो. मैं तो कह रहा था अपनी टी शर्ट उतार के बनियान फाड़ने वाला था, मैं इतना कुछ करने वाला था. और ये सब मैं करता, अगर मैं अनपढ़ गवार अंगूठा छाप होता ना तो मैं जरूर करता. मैं ये पिक्चर बहुत इंजॉय करता भाई. गलतियां सारी मेरी पढ़ाई लिखाई की, मेरी तालीम की, तुम्हारी तालीम की, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की. तो अनपढ़ गवार है तभी तो ऐसा छपरी रिव्यू बना रहा है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ फिल्म मेकिंग अनपढ़ गवार है ये. Yes, that's what I was saying. कि इसको कुछ नहीं समझ में आया फिल्म देख के. नहीं समझ में आया. वो he went inside with a mindset, he came out with the same mindset. 3 घंटा सोया है वो बंदा. हाँ. ठीक है. And he has not understood a single thing. He has a problem against glorification of gutka, and he has a problem against quote unquote छपरी and अनपढ़ गवार वाला चीज, because he feels कि अरे वो sophisticated है. ठीक है, fair enough, हो सकता है मे बी उसका उस तरीके का उस आउटलुक से वो आया है. बट तू फिल्म ही इग्नोर करेगा क्या पूरी तरह से? Let's see, maybe कुछ बोला होगा उसने आगे. अभी तक पिक्चर के बारे में एक भी चीज नहीं बोला उसने. ना हाँ. डायरेक्शन के बारे में बोल रहा है, ना कैरेक्टर के राइटिंग के बारे में बोल रहा है, डायलॉग्स के बारे में कुछ नहीं बोला उसने अभी तक. चलो ठीक है, अभी तो शायद रिव्यू शुरू ही हुआ है, अभी 1 ही मिनट हुआ है. हाँ. देखते हैं अभी और Maybe क्या he say पकड़े कि हैं. इसको ये चीज अच्छी लगी, वो चीज अच्छी लगी. Let's see. हाँ चलो आगे बढ़ो. रियल रिव्यू बहुत ही बढ़िया. या रियल रिव्यू है इसका. बाकी हमको कुछ नहीं आता इसका. ये इसका वाला रियल है. गलती हम सब की है कि हम पढ़ लिख लिए और उसके बाद जाके पुष्पाराज देख ली. यार मुझे ना बहुत दुख हो रहा है इस बात का. अगर मैं चौथी क्लास में अगर मैं पढ़ाई छोड़ देता ना यार, मैं कह रहा हूँ यार 10वीं क्लास में मेरी अगर कंपार्टमेंट आ जाती ना, और उसके बाद स्कूल वूल छोड़ के वो चिपकी जीन्सें पहनता, लोफर पहनता, नीचे अंडर कट करा था, बरगंडी कलर के बाल करा था, सारा दिन गुटखा चबाता ना भाई, मैं इतना एंजॉय करता यार इस फिल्म को. यार मेरी गलती है यार. वाओ. तो भाई the condescension यार. The condescension is crazy. इतना पढ़ लिख के भी तू यूट्यूबर ही है. पढ़ लिख के कौन सा IAS बन गया तू? हाँ एग्जैक्टली. फुल फैमिली एंटरटेनमेंट है भाई पिक्चर के अंदर. फीलिंग्स वाला गाना है ना, वो तो फुल फैमिली एंटरटेनर है. किसी को भी अपने माँ बाप के साथ वो पिक्चर देखते हुए फैमिली के साथ शर्म नहीं आएगी, क्योंकि गाने में क्या है, सिंपल सी तो चीज है. हाँ तो मत जाओ फैमिली के साथ. नहीं अकेले चले जाओ. नहीं तो बेशरम रंग में जो दीपिका चड्डी पहन के आती है उसमें शर्म, उसमें वो तो बड़ा पारिवारिक माहौल था वो. आई डोंट नो, मे बी ही हैड अ प्रॉब्लम विद दैट. आई एम सेइंग हर फिल्म फैमिली के साथ मत देखो. ठीक है, कुछ फिल्म अकेले चले जाओ. कुछ फिल्में आती है ऐसी जहाँ पे तुम अकेले बैठ सकते हो. आई अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट जो फीलिंग्स वाला सॉन्ग है उसके हिंदी लिरिक्स बहुत बकवास है. आई नो कि उसका ट्रांसलेशन बहुत ही वाहियात है. एंड व्हेन द सॉन्ग केम आउट मेरे को भी लगा था बहुत बकवास है, बट आई वॉच्ड इट इन तेलुगु. ओरिजिनल तेलुगु लैंग्वेज में मैंने देखा है. तो तेलुगु में यस दे आर टॉकिंग अबाउट सेक्स, दैट इज द एंटायर सॉन्ग. बट जो सिचुएशन है वो भी तो वही चल रहा है. दिस सॉन्ग इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ दैट एक्ट भाई. And this is exactly how I told you during the review. This is how I picture these two characters doing it. एग्जैक्टली, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन देम, दे आर क्रेजी. इससे पहले वाला जो सीक्वेंस होता है. This is the thing. Okay, these are all professionals. गणेश आचार्य ने कितना काम किया है, कितनी फिल्म. एक उसको तो वो लगता है वो एक फिल्म के ये गाने के लिए उसने सारा अपना नॉलेज भूल गया. वो उसको पता है कि अल्लू अर्जुन कैसा कैरेक्टर है, पुष्पा कैसा है, उसको पता है श्रीवल्ली कैसी है, उसको पता है ये दोनों डांस करेंगे तो कैसे करेंगे. सी आई नो गणेश आचार्य ने वो जो तृप्ति दिमरी के साथ करा था वो तो नाइंसाफी थी. वो जो भी गाना था वो तो बहुत बड़ी नाइंसाफी थी. बट मेरे हिसाब से क्या है कि ये वाला जो कोरियोग्राफी देख, द ओनली प्रॉब्लम दिस पीपल, मोस्ट ऑफ द रिव्यूअर्स व्हिच आई सॉ, दे हैड अ प्रॉब्लम दैट दिस फील्स लाइक अ हाई बजट भोजपुरी फिल्म. भोजपुरी सॉन्ग. या मैं कह रहा हूँ कि उससे प्रॉब्लम क्या है?
If you go and watch the film, Srivalli is actually a character, a proper person. Like she has a proper personality. In this In this particular film. film, yes. Compared Yes. to the first one में तो कुछ नहीं था उसका. हाँ. So if you have a problem with like Srivalli's character here, you should not have that problem. अगर तुमको डांस का कोरियोग्राफी से प्रॉब्लम है ना, तो फिर तो सब्जेक्टिव है, तुम लोग को पता नहीं क्या समझ में आ रहा है. नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स के साथ वो मूवी देख रहे हैं, अगर मतलब मान ले फैमिली के साथ ये मूवी कोई देखने गया, बच्चे अगर उनको लगा कि ये थोड़ा सा दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, इसमें काफ़ी इनअप्रोप्रिएट हैं, आई अंडरस्टैंड दैट कि ऑफ कोर्स यू कांट काइंड ऑफ टेक अ चाइल्ड टू वॉच दिस मूवी, बट स्टिल इसका सर्टिफिकेशन ऑलरेडी यूए है. यूए इज बेसिकली यूनिवर्सल / एडल्ट, सो देयर इज एन एडल्ट एलिमेंट टू दिस पर्टिकुलर मूवी जो पहले से सर्टिफिकेशन में है. तो मत ले जाओ ना अपने बच्चों को, माइनर बच्चों को पुष्पा देखने क्यों ले जा रहे हो? हाँ, वैसे भी वायलेंस भी तो है इसमें. वायलेंस इतना है, भर भर के वायलेंस है भाई. हाथ कट रहे हैं, पाँव कट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. उसमें इसको नहीं सूझ रहा है. ही हैज अ प्रॉब्लम विद द वल्गैरिटी ऑफ इट. हाँ ठीक है, चलो भाई, वल्गैरिटी की बात आ रही ना. बॉलीवुड में अगर होता ना, इनको अगर इंटरकोर्स दिखाना होता, वो इंटरकोर्स ही दिखाते. We should point out the hypocrisy. Let's look at like some of the other reviews, but ये continue करते हैं. चलो. रश्मिका मंदाना का मन कर रहा सेक्स करने का, तो भाई गाने में हो रहा है फीलिंग कैसे आ रही है? स्टेप है अल्लू अर्जुन की धोती के नीचे से झांग में डालते हुए हाथ डालना है, 1 2 1 2 अंडर द झांग, और उसके बाद फीलिंग आती है अल्लू अर्जुन क्या लगता है, अगर ये मेरी झांग के नीचे से हाथ डाल रही है तो मेरे को भी तो फैमिली एंटरटेनमेंट करनी है, मुझे क्या करना है? रश्मिका मंदाना का छोटे से ब्लाउज के अंदर 2 minutes in, nothing about the film by the way. No, nothing about the plot, the characters, nothing, zero. Okay, नहीं 2 क्या minutes वो in. इसका आर्ग्यूमेंट शुरू होता है कि रश्मिका मंदाना को सेक्स करना, तो नहीं कर सकती क्या? लड़कियों को सेक्स नहीं करना होता? और वो कैसे करेगी सेक्स? ऊपर से? हाँ, तो भाई वो हस्बैंड एंड वाइफ है. दे आर नॉट रश्मिका मंदाना एंड अल्लू अर्जुन, दे आर पुष्पा एंड श्रीवल्ली. या इनका रिलेशनशिप है. दिस सॉन्ग इज एंटायरली अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पुष्पा एंड श्रीवल्ली, एंड क्यों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में मत. हाँ पर ठीक है, छोड़ो यार, ये सिंगल आदमी होगा. आगे बढ़. The thing is like he's commenting on choreography. Another thing I pretty much know he does not understand. फुल कल्चर दिखा दिया भाई पिक्चर के अंदर. पता कैसे दिखाया कल्चर? एक तरफ पुष्पराज देश से चोरी कर रहा है $1 मिलियन की, पता नहीं कितने $multi-million का सैंडलवुड स्मगल कर रहा है, और वहां पे वो वाला शॉट चल रहा है और पैरेलल ड्रॉ किया है, पुष्पराज पूजा कर रहा है भाई साथ में. ये होता है भाई कल्चर. मेरे तो पॉज. गॉडफादर, साले गॉडफादर नहीं देखी तूने? गॉडफादर में क्या होता है एंड में? वो तो इसको आर्ट लगा होगा. माइकल कॉर्लियोन पूरा अपना जितना भी जितने भी उसके गैंग के माफिया के जो लोग हैं, एनिमीज हैं, सबको पिलवा रहा है, और वहां पे बैप्टिज्म चल रहा है चर्च में. उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई. we talked about this with we compared this to Godfather, right? अपने रिव्यू में. वही ना, इट इज लिटरली द वर्बेटम सेम सीक्वेंस. या उसमें गॉडफादर के साथ वो क्रिश्चियनिटी को दिखा रहे, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ मूवीज उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी को दिखा के उनका कल्चर वो है. हम अपने कल्चर में दिखा रहे हैं कि भाई हाँ. गॉडफादर तो छोड़ ब्रो, गॉडफादर छोड़, ठीक है. एक साइड वो विजिलेंटे बना हुआ है, बैटमैन बिना लॉ को यूज किए लोगों को मार रहा है. एक साइड वो रेचल को बचा रहा है. क्यों? अच्छा इंसान है, खराब इंसान है, जरा बताओ मुझे. उसको पीलिंग्स हो गई ना. ही वांटेड दैट, लाइक जब तक वो रेचल और ये प्रॉपर पीलिंग्स वाला डांस नहीं करेंगे तब तक उसको बैटमैन में खराबी नहीं दिखेगी. तब तक. ओके, नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, यस आई एग्री विद वन पर्टिकुलर थिंग कि द ग्लोरिफिकेशन ऑफ सैंडलवुड स्मगलिंग, वो हमें भी प्रॉब्लम है. We discussed that, yeah. We discussed that कि the ethical issues हैं कि भाई अल्टीमेटली देखा जाए तो वो स्मगलर ही है. But what I'm saying is, we are also seeing the consequences of his lifestyle. He is constantly, his life is under threat. Also, they pointed out the chief minister does not want to take a picture with a smuggler. ये सुकुमार को पता है ब्रो, ठीक है. सुकुमार को पता है कि ये स्मगलर है, वो उसको ग्लोरीफाई कर रहा है. ही नोज, एंड अगेन नेक्स्ट फिल्म में ही विल पे फॉर इट. we have already seen him paying for it. इस मूवी के एंड में there is literally a family gathering जिसमें there is a supposed blast which is happening. So we don't know the casualties of this particular thing. So even though his crime has paid off, he is going to face the consequences. The movie, yes, of course it's going to be, I mean, यार अब it's like कि चलो ठीक है, तुम क्राइम के ऊपर मूवीज नहीं देखते क्या?
90% ऑफ बॉलीवुड मूवीज जो तेरी जितनी भी आई थी, ये सत्या, आरजीवी की सत्या आई थी, फिर जितनी भी ये डी कंपनी और जितनी भी ये गैंग्स ऑफ वासेपुर, ये सब क्राइम के बारे में नहीं है क्या? गैंग्स ऑफ वासेपुर को तो सेलिब्रेट करते हैं लोग इतना, मिर्जापुर बैठ के इतना देखते हैं, क्यों? ये सब क्रिमिनल्स के बारे में नहीं है? No, okay, broader point, just saying, a good film is a good film no matter what it glorifies. या Okay, एग्जैक्टली. I don't care what it's glorifying. Sure, ethical debate बाद में करेंगे. अच्छी एनिमल, okay, सब गलत चीज़ें ग्लोरीफाई कर रही है. Sure, अच्छी फिल्म है, हाँ, बढ़िया फिल्म है, सही से बनाई है उसने, ठीक है, उसकी बात कर ले एक बार. इसका पूरा टॉपिक ही अलग है. इसको ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द फिल्म, ही इज टॉकिंग अबाउट द मतलब एथिकल इश्यूज ही हैड विद वर्चू सिग्नलिंग कर रहा है, Virtue signaling कर रहा है. भारी मात्रा में वर्चू सिग्नलिंग कर रहा है. मैं कह रहा हूं कि ये मूवी देख के क्या सैंडलवुड स्मगलिंग इंक्रीज हो गया? या ये मूवी के बिना अगर ये मूवी नहीं बनती तो सैंडलवुड स्मगलिंग एग्जिस्ट नहीं करती क्या? सैंडलवुड स्मगलिंग हैज बीन गोइंग ऑन सिंस ब्रिटिश पीरियड. या एंड पिछले अगर स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे ना 2016 से 2020 के बीच में कम से कम 20,000 टन सैंडलवुड इंडिया से स्मगल हुआ है. this is Pushpa's character. हाँ. He has been bullied to no extent. Yeah. About his brand. Okay. And Pushpa has been driven to do this. उसको उसमें ethics बचे ही नहीं है. तुमने निकाल दी उसके बचपन में. Basically he would have done anything. उसके लिए sandalwood smuggling is just one particular avenue where he's expressing his frustration and he's basically trying to be, उसको पैसा कमाने के लिए कुछ भी करना है. But imagine this fact, he is doing sandalwood smuggling. He is not engaged in human trafficking. He is not engaged in डकैती. वो लूट नहीं रहा है. He pays the police officers their earned dues. Like कि तुम पूरा पैसे लो, राउंड ऑफ कर देता हूँ फिगर तुम्हारे लिए, मैं बढ़िया से पैकेज बना के देता हूँ तुमको मैं. Ultimately he is just doing, he's टेकिंग ओवर अ बिजनेस. एक वो कमोडिटी को निकाल के वो बेच रहा है एंड ही इज मेकिंग द फुल प्रॉफिट, सो दैट कि मतलब अगर गवर्नमेंट करे तो सही है, ये खुद करे तो गलत है. आई नो गलत है, स्मगलिंग अल्टीमेटली गलत है, बट व्हाट उसके लिए क्या है कि सरकार मदद नहीं करने आई थी उसकी जब वो अकेला ऑर्फन बन के छूटा गया था. कोई नहीं आया था उसके लिए. क्या है कि वो मेहनत करके जा रहा है, वो जाके वर्कर्स के साथ जाके वो सैंडलवुड काट रहा है फिजिकली एंड ही इज गेटिंग पेड फॉर इट. फॉर हिम इट्स अ बिजनेस, फॉर हिम ही इज डूइंग द हार्ड वर्क. दैट इज व्हाट हिज कैरेक्टर इज. एंड ऑफ कोर्स ही बिकेम द सिंडिकेट्स बॉस. एकदम वो बॉस बन गया. बॉस बनने के बाद क्या वो करप्ट हो गया? द वेरी फर्स्ट सीन ऑफ दिस मूवी, अपार्ट फ्रॉम द जापानीज सीक्वेंस, द वेरी फर्स्ट सीन, उसका एक कूली होता है जो पुलिस के पकड़ा गया, जो उसकी शादी होने वाली है, तो जो शादी होने वाली है उसका ससुर आके बोल रहा है कि इस कूली के लिए क्या पुष्पा जाएगा छुड़ाने. द कट टू द वेरी नेक्स्ट सीन, पुष्पा जा रहा है पर्सनली छुड़ाने. पुष्पा इज एन एंटी हीरो ब्रो. इट्स एग्जैक्टली वेरी ऑब्वियस. पुष्पा एंटी हीरो है. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कैरेक्टराइजेशन, अगर तू खुद को रिव्यूअर बता रहा है ना भाई, मूवीज देख ले. यू आर टॉकिंग अबाउट मोरालिटी. अरे यूथ खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा. मैंने कह रहा हूँ यूथ खराब होने के लिए पुष्पा क्या, उसको खराब होना खुद ही खराब हो जाएगी वो. हाँ वो तो है. it's just he just wants to hate on it. It's very obvious. हाँ वही मतलब इट्स लाइक कि देयर इज अ ब्लाइंड हेटरेड व्हिच आई एम सीइंग एंड वो बस जानबूझ के इसकी वो पॉइंट आउट कर रहे हैं. ठीक है आगे मतलब ही हैज अ I have not प्रॉब्लम. seen the entire review this one, but I'm pretty sure कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड निकालेगा ये. मतलब ही हैज काइंड ऑफ बेसिकली ये है कि इसको उस पर्टिकुलर ऐसे टाइप के लोगों से प्रॉब्लम है. पूरे ऐसे टाइप के लोग इसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए. ऐसे टाइप के लोगों की जो फीलिंग्स है या ऐसे टाइप के लोगों के जो पर्टिकुलर इमोशंस हैं, दे डोंट मैटर एट ऑल. दैट इज व्हाट ही इज गोइंग टू से कि ऐसे लोगों के लिए तो मूवीज बननी ही नहीं चाहिए. तो इंटरस्टेलर लगाओ. ये लोग नहीं, मुझे थिएटर में भी नहीं चाहिए देखने के लिए. वही ना मैं क्या इंटरस्टेलर साले देखना है घर बैठ के देख ले. ऑलरेडी आ चुकी है 10 साल पहले आई थी. IMAX में देखनी ना उसको पैसे खर्च कर. भाई IMAX में देखनी है, अगले महीने रिलीज हो जाएगी इंटरस्टेलर. री रिलीज कभी भी कर देंगे वो. इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटर इश्यू. उन लोग को, वो लोग पागल है कि उनको पता होना चाहिए रिसर्च में. तो एक वन टाइम यू रिसर्च यू विल फाइंड आउट कि दिस इज द बिगेस्ट फिल्म इंडिया में जो ये साल रिलीज हो रही है. लेट्स नॉट रिलीज इट राइट नाउ. सेकंड बिगेस्ट मार्केट है वर्ल्ड का. इट इज एन इंडियन मेड फिल्म. पैसा इंडियंस का लगा है, प्रोड्यूसर इंडियन है. तुमको इंटरस्टेलर देखनी है वो स्क्रीन में.
वही ना मैं कह रहा हूँ, इंटरस्टेलर का अगर पैसा हो रहा है तो कमाएगा डिस्ट्रीब्यूटर, नो डाउट कि डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा होगा वो। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर इंपोर्ट करा रहा है उसको ज्यादा पैसे देने होंगे कंपेयर टू, और उसमें गारंटीड रिटर्न्स भी नहीं है। मतलब 100 लोगों को इंटेलेक्चुअल ऑर्गेजम चाहिए वहां पे बैठने के लिए, आईमैक्स चला रहा है क्या वो? अपना धंधा कर रहा है क्या वो? ओ आईमैक्स वाला है, वो ट्रेंड ही कितना भरता है, उसको रिकवर नहीं और क्या, और क्या, मतलब तुमको साल में एक बार आईमैक्स देखना होगा उसके लिए, बट उसके लिए तो पूरा साल कॉस्ट उसको बेयर करना है ना आईमैक्स चलाने के लिए। और ये पुष्पा 2 और गिनी चुनी तो मूवीज आती है जो आईमैक्स का बिजनेस उठा सकती हैं। एग्जैक्टली। और उस टाइम पे who would like Pushpa to actually watch IMAX films? भाई मैं सेकंड टाइम मैं गया था ना, सेकंड टाइम मूवी देखने मैं आईमैक्स पे गया था देखने। आंखों में आंसू आ गए यार, क्या कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है एक स्मगलर की पूजा पाठ के साथ यार। क्या प्यार दिखा दिया अपनी बीवी के लिए भाई पुष्पा राज का। रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर से बड़ा पुष्पा राज के लिए कोई है नहीं दुनिया में। क्या प्यार है, ठीक है। और यही प्यार वो कैसे दिखाता है, एक आइटम सॉन्ग आता है सेकंड हाफ में, वहां पे उसकी बीवी टेबल पे बैठी है लेकिन वो आइटम सॉन्ग जो कर रही है ना लड़की, That's progressive, bro. That's progressive. नहीं, नॉट इवन If Rashmika is allowing him, वो इतना प्रोग्रेस। ट्रस्ट करती है बंदे पे कि शी इज लाइक कर ले भाई। एंड वो लिटरली देर इस सॉन्ग में जो स्टेप है ना, द लिरिक्स आर लाइक थप्पड़ मारूंगी एंड वी आर कटिंग द विजुअल टू राश्मिका जब वो भी ऐसे माइम कर रही है कि ज्यादा बकचोदी की तो थप्पड़ मारूंगी, कर ले एंजॉय। तो अच्छा, कभी खुशी कभी गम में शावा 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 सॉन्ग में शावा। अमिताभ बच्चन नाच रहा है तब तेरे को प्रॉब्लम नहीं है? उसका इतना वो मीम तो बना बूढ़ा हुआ है। है। और वो जया बच्चन एंड में आके बस कुछ नहीं, वो आके बोलती है चलो भाई हो गया, बहुत हो गया, बस वो कर रही है। इसमें तो राश्मिका, और वो इसमें लिटरली अल्लू अर्जुन जब वो स्टेप भी कर रहा है, ही इज नॉट इवन पेइंग अटेंशन टू द आइटम गर्ल, ही इज लुकिंग टुवर्ड्स हिज वाइफ। उससे ज्यादा क्या हो सकता है? ही लैच्ड ऑन टू द नैरेटिव। उसने वो सीन देखा, लाइक खत्म, अब हाँ। खत्म हो गया, अब पुष्पा को उसके ऊपर ग्राइंडिंग कर रहा है भाई। आहा आहा पुष्पा राज, आहा आहा। अरे भाई ये होता है प्यार। अगर ये सारा नहीं, ये होता है कंसेंट, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कंसेंट है, तुमको जो करना है करो। लोग शादी में 3 वे मारते हैं, लोग जाते हैं, पर कंसेंट लेके जाओ। नहीं, consent शादी ले का छोड़, तो शादी का छोड़, यही लोग हैं जो कल यूएस में जाके स्ट्रिप क्लब में पैसे उड़ाएंगे। कि वहां तो हम एंजॉय कर रहे हैं, वहां पे लिटरली देयर आर टॉपलेस वुमेन, वो आके ग्राइंड कर रही होंगी वहां पे, ये जाके डॉलर उड़ाएंगे एक एक करके। पर ये शादीशुदा नहीं ना, दैट इज द पॉइंट ही विल मेक कि मैं तो शादीशुदा अच्छा। नहीं हूँ, मुझको जो करना है मैं करूंगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट्स द लेसन इज कॉन्सेंट, ठीक है। अगर पुष्पा, अगर उसकी वाइफ को पसंद नहीं है ना ये, देन इट्स टेक एनिमल फॉर एग्जांपल, ओके। व्हाट रणबीर इज डूइंग इन दैट फिल्म विद तृप्ति, दैट इज रॉन्ग। That is wrong. And okay, I also say that जो फर्स्ट मूवी में जो ऊ अंटावा सॉन्ग आता है, उसमें रश्मिका हैज नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड आई थिंक एट दैट टाइम उन दोनों का रिलेशनशिप भी शुरू हो जाता है। पुष्पा और रश्मिका का रिलेशनशिप भी उस टाइम पे, जो श्रीवल्ली है उसका कैरेक्टर का रिलेशनशिप शायद उस टाइम तक शुरू हो जाता है, या शुरू होने वाला होता है, या आई थिंक नहीं, शुरू नहीं होता तब तक उनका रिलेशनशिप शुरू नहीं होता, क्योंकि उस गाने के बाद ही तो वो पता चलता है उसको कि जो मंगलम सीनू है पैसे खा रहा है। फिर वो जाता है अपना पूरा का पूरा जाके स्मगल डायरेक्टली जाके वो जाता है उसके पास, उसके बाद ही वो उन दोनों का रिलेशनशिप शुरू होता है। तो पुष्पा उस टाइम पे सिंगल था। सो दिस इज कॉल्ड सुकुमार नोज व्हाट इज गोइंग ऑन। सुकुमार को प्रॉपरली उसने कंस्ट्रक्ट किया कि अभी इस टाइम पे ही पुष्पा इज अ मैरिड मैन विद अ प्रेग्नेंट वाइफ, तो अगर इस टाइम पे वो आइटम सॉन्ग कर रहा है तो आइटम सॉन्ग में उसकी वाइफ का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। सो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर कॉन्शियस राइटिंग। या तो ये सब तो बताएंगे नहीं भाई साहब, क्योंकि इनको तो पुष्पा की टट्टी दिख रही है। नैरेटिव बेचना है ना इनको, एजेंडा चाहिए। वही ना, एजेंडा चाहिए इनको। राइट, लेट्स कंटिन्यू। चार चौखट मायावी चूतियापा अबाउट द कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, अबाउट द फीमेल रिप्रेजेंटेशन, जो पुष्पा 2 में दिखाया नहीं गया, ग्लोरीफाई करा गया है। किसी बॉलीवुड फिल्म में करा जाता ना। पॉज कर भाई, अब पॉज कर। नहीं चल पॉज कर। फीमेल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा ना, आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस एंटायर मूवी। अब तो इसने बहुत बात ही छेड़ दी है। मैं बताता हूं, पुष्पा 2 जो एंटायर मूवी है ना, इट इज अबाउट वुमेन। देयर इज अ थीमेटिक रेलेवेंस टू द नेम पुष्पा। व्हेन यू, पुष्पा इज अ फीमेल नेम। या
यू नेवर एक्सपेक्ट पुष्पा देख के यू सी दिस पर्टिकुलर विजुअल कि ये क्या रगेड आदमी है, एकदम ऐसा, एकदम हार्डकोर मैस्कुलिन मैन. सो दैट इज इटसेल्फ अ थीमेटिक रेलेवेंस की. और वही डायलॉग बार बार ही आता है कि पुष्पा नाम सुन के तेरे को क्या लगा, फ्लावर है, फायर हूं मैं करके वो बोलता है. दैट इज द थिंग. एंड दिस इज वाई यू हैव दैट एंटायर जातरा सीक्वेंस, जो माँ काली का सीक्वेंस है. बेसिकली दैट एंटायर सीक्वेंस इज अ visual representation of Pushpa as a character. कि Pushpa is both vulnerable as a flower but is a wildfire, जो कि उसके डांस में निकल के आता है. He is literally dancing on the fire. वो जो कोल, burning कोल में वो डांस कर रहा है. That is Pushpa as a flower expressing his inner. Yeah, exactly. That is his inner conflict. You can see it now. It's a visual representation of his inner conflict. And जो उस and as soon as that entire माँ काली वाला डांस सीक्वेंस खत्म होता है, एकदम से श्रीवल्ली आती है, उसको पकड़ती है, बोलती है भाई तू क्यों कर रहा है इतना, व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस. वो फिर अंदर का अपना वो पूरा फ्रस्ट्रेशन उसी टाइम पे वल्नरेबली निकालता है कि लाइक इवन दो आई विल क्लाइंब दिस, इतना मैं ऊपर, इतना बड़ा आदमी मैं बन जाऊंगा, बट आई मे नेवर बी एबल टू गिव माई सन द ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज उसने पूरी, वो डर रहा है कि पूरी जिंदगी जो उसने फेस किया है, क्या पता मेरे बच्चे को भी यही चीज, यही स्टिग्मा और यही सोशल स्टिग्मा फेस करना हो. उसी डर के मारे वो पूरा निकल के आता है. एंड दिस इज ऑल्सो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ श्रीवल्ली बेसिकली इंप्रूव्ड पुष्पास लाइफ. लाइक शी काइंड ऑफ सेव्ड हिम, कि उसका जो पूरा फ्रस्ट्रेशन है उसकी लाइफ का श्रीवल्ली के आने के बाद, देन द सॉन्ग प्लेसमेंट हैपेंस. वो जो सामी वाला सॉन्ग आता है जिसमें दोनों she strengthens his character. She strengthens his character so well. and उसके लाइफ में प्यार आया है आफ्टर श्रीवल्ली. वही वो सॉन्ग है कि जो उसका पूरा जो टर्मोइल था, उसकी पूरी लाइफ की टर्मोइल थी, जो वो उसने जात्रा सीक्वेंस में एज अ डांस करके दिखाया. उसके बाद श्रीवल्ली के कैरेक्टर के आने के बाद उसके लाइफ में स्टेबिलिटी आई. I really want to see this guy's animal review now. I really want to see it. देख लेंगे, वो बाद में देखते हैं. बट मेरे लिए वही था कि लाइक दिस इज व्हाट आई सॉ व्हेन आई वॉच्ड द मूवी फॉर अ सेकंड टाइम, कि ये सारी डिटेलिंग है. दैट इज व्हाई मेरे को लगा कि जात्रा सीक्वेंस, इवन तो आई फेल्ट द वेरी फर्स्ट टाइम इट इज नॉट कनेक्टेड टू द ओवरऑल स्टोरी, इट इज वेरी मच कनेक्टेड टू पुष्पा एज अ कैरेक्टर. Yeah. So it strengthens this narrative which I had कि जो 18 मिनट का वो जो सीक्वेंस है ना, that is a perfect representation of Pushpa as a character. वो एक शॉर्ट फिल्म की तरह रिलीज करोगे ना, that is amazing शॉर्ट फिल्म. And अल्लू अर्जुन इतना अच्छा डांसर है, वो क्या पुल ऑफ किया उसने. उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए उसको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए. आई विल से कि उसको फर्स्ट मूवी में नेशनल अवार्ड मिला, वो डिजर्विंग नहीं था. इस मूवी में उसको नेशनल अवार्डिंग डेफिनेटली डिजर्विंग है. आई नो कि मेरे को पता है कि दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम कांतारा, बट सुकुमार हैज मेड श्योर कि वो जो सीक्वेंस है वो पुष्पा के साथ कनेक्टेड है. इट इज नॉट लाइक सिंघम 3 जिसमें जानबूझ के रामायण को घुसाया गया. क्या वी टॉक्ड अबाउट दिस. इसमें दे चोज द गॉड स्पेसिफिकली. जो माँ काली उन्होंने चूज किया, एक तो सबसे पहले जो उसको तेलुगु में बोलते हैं गंगम्मा तल्ली. गंगम्मा तल्ली जो है दैट इज द बिकॉज दिस इज हैपनिंग इन तिरुपति. तिरुपति इज लॉर्ड बालाजी. उस स्थल में बताते हैं. एंड ये जो माँ काली है दैट इज द फीमेल वर्जन ऑफ लॉर्ड विष्णु. So ultimately there is a thematic relevance to entire this space and thematic relevance to Pushpa as a character. बहुत consciously build किया है. This is called, रुक जा, world building. ये लौड़ा बोल रहा था ना, यही है world building. You know what is happening here? This guy is making us fall in love with the film even more. हाँ, मेरे को ये कह रहा है कि तू भाई इतनी चीजें बोल रहा है ना, तो इस मूवी में इतनी सारी चीजें हैं. Those who can watch, those who know film, those who understand film will be able to appreciate everything which is happening in this film, because there is so much to appreciate in this movie. by technical standpoint से इतनी amazing चीजें हो रही हैं उस मूवी में. तू imagine करके देखेगा वो पूरा जात्रा सीक्वेंस जो है टेम्पल का 18 मिनट का है. तू किसी भी मूवी स्ट्रक्चरली इट ब्रेक्स ऑल द रूल्स. एक पूरा स्पीड ब्रेकर है वो, एक पूरी मूवी में बीच में स्पीड ब्रेकर की तरह आ रहा है वो 18 मिनट. कौन करता है भाई ऐसा? उसको नहीं समझ में आएगा. स्टार वॉर्स लास्ट जेडाई या तूने देखी है? अच्छा, तूने तो मूवी नहीं देखी, कोई पॉइंट ही नहीं डिस्कस करने का. I've only seen Force Awakens, that's it. नहीं तो वो तो चल ठीक है, बट लास्ट जेडाई में ऐसा ही होता है कि बीच में ना एक 18 मिनट का सीक्वेंस आता है जिसमें लिटरली
रैंडमली कुछ हो रहा है, दैट हैज नो बेयरिंग्स टू द ओवरऑल स्टोरी, दैट हैज नो कनेक्शन टू द ओवरऑल स्टोरी, इट फील्स लाइक अ फिलर, इट फील्स लाइक अ डिरेलमेंट. इसमें द सेम थिंग इज हैपनिंग बट आई एम एंजॉयिंग व्हाट्स गोइंग ऑन. एंड आफ्टर वॉचिंग इट फॉर द सेकेंड टाइम, भाई मैं देख रहा हूं कि हाँ देर इज अ लॉट ऑफ थीमेटिक रेलेवेंस टू इट. अल्टीमेटली देख, फिर वो पूरा सॉन्ग सीक्वेंस हुआ जिसमें रश्मिका और वो श्रीवल्ली और पुष्पा का प्यार दिखा रहे हैं, एंड हाउ दिस सीक्वेंस एंड्स with someone targeting a woman from Pushpa's family, जो वो उसकी भतीजी होती है, and Pushpa is fighting for her कि भाई अब तू दिखा. So उसमें अब उसका कल्मिनेशन है कि हाउ पुष्पा, पहला सीक्वेंस उसका ये था कि पुष्पा जो उसका यूथ है पूरी जिंदगी में किस तरीके से, किस टर्मोइल में वो जिया, वो उसने एक्सटर्नलाइज किया उस डांस में, जो माँ काली का सीक्वेंस था. देन व्हेन श्रीवल्ली केम, उसकी लाइफ में वो थोड़ा ठंडा पड़ा, उसमें उसके लाइफ में प्यार आया, वो हमने देखा. फाइनली वी आर सीइंग इन द थर्ड सीक्वेंस जब वो पुष्पा फाइट कर रहा है, ही इज अ फुली फॉर्म्ड कैरेक्टर कि हाँ दिस इज हु पुष्पा इज, की कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर एंड फायर, और तुम्हारी बजाएगा, कोई भी आएगा तुम्हारी बजाएगा, दैट इज पुष्पा. तभी देर इज अ 3 act स्ट्रक्चर टू दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस. सो ये जो है ना, ये फिल्म मेकिंग कर रहा है ना, फ्रॉम अ फिल्म मेकिंग स्टैंड पॉइंट, दिस एंटायर 18-minute सीक्वेंस इज अ टेस्टमेंट ऑफ फिल्म मेकिंग, टेस्टमेंट ऑफ अमेजिंग क्राफ्ट्समैनशिप. तो यही है, मैं कुछ अता पता होता नहीं है, बन जाते हैं माइक्रोफोन उठा के. हाँ, फीमेल एम्पावरमेंट, राहुल गांधी को ले आओ तुम बहन. चल, I'll assume it. फिल्म शुरू हो जाती है रैंडमली, तुम्हें ऐसा लगेगा किसी शिपिंग कंटेनर की ना एड चल रही है. वहां पे मेरे साथ एक आंटी बैठी हुई, बूढ़ी सी, कह रही बेटा शुरू हो गई क्या? मैंने कहा आंटी मेरे को भी यही लगा कि एड ही चल रही है. गुटका राज का जो इंट्रोडक्टरी शॉट है ना, भाई साहब निकलते हैं कंटेनर में से, शिपिंग कंटेनर में से, कितने दिन के बाद? 42 दिनों के बाद. 42 दिन भूखे प्यासे, लेकिन है गुटका राज गुटका चबाया और तैयार, सबको पेल दिया. ये कंटेनर जापान के एक पोर्ट पे उतरता है, कंटेनर में से उतरते हैं अल्लू अर्जुन उतरते ही अपने तांबे के टट्टों में. Have you not seen any other Telugu film? सबको पेल दिया is a leitmotiv. वो हर जगह होता है. Anyways, what I'm saying is, we already talked about this कि जो first sequence है, that felt completely unnecessary. Yeah, it was unnecessary. कि वो जो सेकंड में जैसे उसका कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन है, दैट इज अ मच स्ट्रॉन्गर इंट्रोडक्शन. ये प्रॉब्लम पहली मूवी में भी थी. पहली मूवी में भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि वो पुलिस पकड़ लेती है उसको, और वो फिर फर्स्ट सीक्वेंस इज नॉट एज गुड एज दिस वन. इसमें जो जापान वाला सीक्वेंस है ना, इज एक्चुअली रियली गुड. मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा वो पर्सनली, बट क्योंकि मैं और विष्णु भी देख रहे थे ना, तो वो भी बोल रहा था कि यार मैं डर गया था ये मूवी, मैं सीक्वेंस देख के मेरे को लगा शिट पूरी मूवी ऐसे होने वाली है क्या. मैंने आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइटिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट इंट्रोडक्शन एंड द इट इज प्योर फैनफेयर. इट इज जस्ट प्योर फैनफेयर, और कुछ नहीं है. मतलब तुम डेडपूल एंड वोल्वरीन में पूरा सीक्वेंस देख रहे हो जिसमें वो डेडपूल एंड वोल्वरीन में एंड फाइट में जब वो वोल्वरीन अपना कॉस्ट्यूम मास्क पहन रहा है, दैट इज अ मोमेंट विच एवरीवन हैज बीन वेटिंग फॉर द पास्ट 24 years, एंड इट हैज हैपेंड. बट अल्टीमेटली जो फाइट हो रही है, इतनी लंड फाइट है, वो किसको लड़ रहा है? वो डेडपूल की आर्मी से लड़ रहा है. वो इट्स प्लेड ऑफ एज अ जोक, पॉइंटलेस थिंग. तो वही बट इट इज स्टिल फैनफेयर ना, इट्स अ सेलिब्रेटेड मोमेंट. या सो अब वही सेम चीज तो इसमें भी हो रहा है. पुष्पा एज अ कैरेक्टर, द मेकर्स आर सेलिब्रेटिंग हिम. 3 साल के बाद आ रहा है, और जो मूवी देखने आ रहे हैं लोग, द ऑडियंस जिसको वो टारगेट कर रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग द मूवी टू ओपन विथ एन अमेजिंग एक्शन सीक्वेंस. तो दे दिया उन्होंने एक्शन सीक्वेंस. तो आई फॉरगिव द मेकर्स फॉर चूजिंग टू ओपन द फिल्म लाइक दैट, बट या आई अंडरस्टैंड कि वो सीक्वेंस पॉइंटलेस था. मैं भी मानता हूं कि वो पॉइंटलेस था. ओके. हवा भर के ना आगे देखते हैं ना पीछे, सरपट जापानी चोदने लग जाते हैं. तो जापानी हैरान, जापानी कहते हैं अल्लू भाई आपने जापानी कैसे सीख ली? तो अल्लू भाई पता क्या कहते हैं, सब रुके हुए हैं, सब कटाना पटाना लेके खड़े हुए हैं, इनकी गर्दन काटे, सब रुके हुए हैं. सबको ये जानना है कि अल्लू भाई ने कैसे जापानी सीखी. तो अल्लू भाई अपने लंगोट में से किताब निकालते हैं और आई एम स्किपिंग. हाँ, स्किप. यहाँ पे तुम्हें बताया जाएगा कि भाई जापान गए क्यों, कोई कंक्लूजन ही नहीं है. वो तो पता है. 4 minutes, almost 4 point something minutes in, no talk about the plot of the film. So basically, nearly 45% of his review is pointless. Is pointless. पहले शॉट की पहले पार्ट में गुटका राज के ना हाथ बांध देते हैं गुंडे ताकि वो उठ ना पाए, लेकिन गुटका राज के पैर तो खुले होते हैं, वो कूदी मार के उठ जाते हैं. लेकिन इस बार ना गुंडे जब उनको बांध रहे होते हैं तो उनको याद आ जाता है कि ये पहले पार्ट में कूदी मार के उठ गया तो इसके पैर भी बांध दो. लेकिन उनको ये नहीं पता कि गुटका राज तो सुपर ह्यूमन है, स्पाइडरमैन की गेंद में गन्ना तोड़
दें। तो भैया क्या करा उन्होंने, पुष्पराज ऐसे लेटे होते हैं, ऐसे ठीक है, ऐसे बिल्कुल मछली की तरह। Talk about the plot. किसको पहले मगरमच्छ से ऊपर किसको पे बांध के। पॉज कर। सही, पहली मूवी में गलत बोल रहे हैं भाई साहब, पहली मूवी भी सही से देखी नहीं है, खाली हाथ नहीं बांधते, हाथ बांध के उसका मुंह भी कवर कर देते हैं। Yeah. तो उस मूवी में भी 2 चीजें कवर हुई थी, इस मूवी में भी 2 चीजें को उसको क्या था। एंड फर्स्ट मूवी में उसके पास ज्यादा चैलेंज था बिकॉज ही कुडंट इवन सी वेयर ही वाज गोइंग, सो दैट वाज मच वर्स कंपेयर्ड टू। इसमें तो हाथ पांव बांध दिए, यस ठीक है, ओके। जो फाइनल फाइट सीक्वेंस है ना, मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि ओके ये क्या होने वाला है, बिकॉज हाथ पांव बांध दिया है, मेरे को भी लगा था कि अनरियलिस्टिक होगा। एंड आई एग्री कि काफी हद तक वो फाइट भी थोड़ा अनरियलिस्टिक था, एक हद तक थोड़ा वो फनी भी लग रहा था, बट ठीक है ना, रियलिज्म में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। आई वॉन्ट टू सी हिम बैश दोज पीपल। एंड वो जो एंटायर सीक्वेंस है उसमें भी कैरेक्टर पकड़ के रखा है कि भाई पुष्पा ऑन अ मैड रैम्पेज, वी वॉन्ट टू सी हिम एज अ कैरेक्टर। उसका क्या है, लाइक पुष्पा एज अ कैरेक्टर अभी तक कैसे बिल्ड किया है कि भाई वो इतना पैसे वाला है, लाइक उसने सीएम बदल दिया, उसके पास इतना इन्फ्लुएंस है, वो ऐसा बात, मतलब दैट एंटायर सीक्वेंस इज अ टेस्ट ऑफ हिज कैरेक्टर की कैन ही इवन वॉक द टॉक। तो दैट गोज टू शो दैट इवन इफ यू टाई पुष्पास हैंड्स, पुष्पास लेग्स, अगर उसको करना है ना, वो एंड सांसें जब तक उसकी चल रही है, ही विल कीप फाइटिंग। Yeah. That is his character. He will never It's give not up. about the action scene. It's about the emotion behind the action scene. Is that this girl, he has not talked to this girl, but now he realizes the mistake he has made and he wants to fix it. That's the emotion. वो और follow वो कर लो यार। कुछ भी करेगा, वो उस लड़की को छुड़ाने के लिए कुछ भी करेगा। मतलब उसने लिटरली धमकी दिया था कि अगर उस लड़की को कुछ भी तुमने किया, मैं रपारप काटूंगा। तो देवर लाइक कि अरे क्या कर लेगा तू, देखते हैं, हम हाथ पांव बांध देते हैं। एंड इन ऑर्डर टू काइंड ऑफ बेसिकली दे प्ले राइट इनटू हिम। अगर वो उस लड़की को बाहर ही नहीं लाते तो वो पुष्पा को बड़े आराम से खत्म कर सकते थे। दे वांटेड टू ग्लोट एंड दे गेव हिम द अपॉर्चुनिटी टू फक विथ यू। Yeah. सो वो उन्होंने किया, और वो लड़की को ले आए, उसके सामने वो उसको स्ट्रिप कर रहे थे, तो भाई उसने अपॉर्चुनिटी ढूंढा एंड ही वाज लाइक कि अब मैं तेरे को बताता हूँ। यस, दैट एंटायर एक्शन सीक्वेंस हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट दैट सेंटिमेंट, दैट कैरेक्टर कोर एंड हाउ फाइनली, भाई वो जो मोमेंट आता है ना जब ही इज यूजिंग हिज माउथ एंड रिमूविंग हिज लेग्स रिस्ट्रेंट, और वो फाइनली पुष्पा खड़ा होता है, और फिर एक ऐसे एक्शन सीक्वेंस, मतलब ऐसे वो बेंड करता है एंड ही मेक्स द पर्सन हु इज ट्राइंग टू कट हिम फ्री हिज हैंड रिस्ट्रेंट्स। फाइनली जब वो खुल के ऐसे आता है ना भाई, उस मोमेंट में जो चीयरिंग हुई थी ना, आई माई सेल्फ फेल्ट कि दैट इज अ गूज बम्प मूवमेंट। यस, लॉजिक नहीं है, बट वाई डू यू नीड लॉजिक? Yeah. एक इमोशनल कोर है उसमें। माना कि वो फाइट सीक्वेंस को और बेटर तरीके से शूट कर सकते थे। आई वुड से कि अगर ऐसा ही एक सीक्वेंस टॉम क्रूज करता, और टॉम क्रूज माइट हैव डन इट इन अ वेरी रियलिस्टिक वे, लाइक कि अगर असली में बोलता ना, वो इस तरीके से हवा में नहीं उड़ता। दे वुड हैव हैंडल्ड, दे वुड हैव टेकन केयर ऑफ द फिजिक्स एंड ही वुड हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व, लाइक एन एक्शन सीक्वेंस वेयर hands and legs are both tied. How is this person going to defend himself? कैसे होगा? So वो चीज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, and the way these makers have chose to do it, it is a very heightened reality. It is not realistic. Anime है यार, this is real life anime. They've not even set your expectations in that way. सबको मार दिया एक शॉट में। अल्लू अर्जुन जो दादा है पूरे के पूरे सिंडिकेट का, उसके साथ उसके सारे टट्टे बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं कि 2-2.5 टन तुमने माल स्मगल करना है, हमारी गांड पट रही है, हम क्या करें। सबकी एकदम बंद हो रखी, चिपकी हुई है एकदम, ठीक है भाई। वो अल्लू अर्जुन कह रहा है ऐसा हाथ रख के भाई कि मैं सोचता हूँ क्या कर रहा हूँ। वहां से रश्मिका मंदाना आती है, कह रही मैंने मीट बना रखा है, ये बताओ कि इसमें नमक ज्यादा तो नहीं है। तो वो टेस्ट करे कहता है इसमें नमक ज्यादा है, वो नाराज होकर चली जाती है। तो भैया वो मीटिंग छोड़ के उसको मनाने के लिए जाता है। अब तुम्हें So what's wrong? That's his character. So that goes to show कि his priorities are set. He wants to prioritize his relationship over the syndicate, and he has the control over syndicate so much that the people over there are also respecting his privacy कि हाँ भाई जा तू। So that goes to show he has कौन सी फिल्म देख के आया ये? मतलब इट गोज टू शो कि उसने दोनों साइड को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा है। उसकी ये रिलेशनशिप भी अच्छी है, वो रिलेशनशिप भी अच्छी है कि द पीपल आर अंडरस्टैंडिंग ये सीक्वेंस भी और वो भी। He thinks that these scenes have no specific use and he's just shitting on these scenes saying कि सब ऐसे ही दिखाया है।
अबे मेरे लिए तो वो मोमेंट इतना अच्छा था, मेरे लिए था कि भाई ये बंदा, मेरे लिए बंदा कि इतना सब कुछ हो रहा है और वो फिर भी प्रायोरिटाइज कर रहा है कि अपनी बीवी के लिए जा रहा है, प्रायोरिटाइज कर रहा है। तो दैट गोज टू शो भाई वो सीन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, उसी का एक ये सीक्वल सीन है। पहला सीन क्या होता है, वो सीएम से मीटिंग करने के लिए जा रहा है, वो किचन में उसको गुड बाय बोलने जाता है, तो वो बोलता है कि चलो 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 करके, एंड देन दे गो। फिर वो आधे घंटे लेट जाता है इन ऑर्डर टू मीट द सीएम, ही इज गोइंग लेट, सो ही इज गोइंग टू प्रायोरिटाइज हिज वाइफ। अल्टीमेटली वही तो स्टोरी है पुष्पा। पूरी मूवी एवरीथिंग ही इज डूइंग फॉर हिज वाइफ। उसकी बीवी ने फोटो मांगा, फोटो नहीं दिला पाया तो उसने लिटरली सीएम बदल दिया, और वो सीएम बदलने के लिए दुनिया भर की सारी चीजें कर चुका वो। 2000 टन उसने स्मगल किया सैंडलवुड जस्ट टू मेक श्योर कि उसकी बीवी को एक फोटो मिले सीएम की। वो है कहानी, एंड दैट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अल्टीमेटली वन लाइनर पुष्पा 2 की यही है कि सीएम की फोटो चेंज करने के लिए पुष्पा 2000 टन स्मगल कर रहा है। इंटरेस्टिंग स्टोरी ब्रो, इंटरेस्टिंग स्टोरी। दैट इज कॉल्ड, इसको बोलो राइटिंग सीखे। ये नहीं सीखेगा इसको। इसको तो इजी, इसको 4.5 we are still no talk about the plot by the way. तो हम नमक बता के वापिस आ जाएगा, लेकिन वहां पे जाता है वो। यहाँ पे अभी सिंडिकेट वालों की गांड फटी हुई है कि भैया इतना माल उठा रखा है हमने, हम उसका क्या करेंगे। ये भाई वहां पे जाते कह रहे नमक ज्यादा नहीं है, तुम इधर आओ। वो जब जा रहा होता है, रश्मिका मंदाना की फीलिंग आ जाती है, फीलिंग। वो कहती है इधर आओ ना, तुम इधर आओ, सेक्स करने लगे, सेक्स सुक्स हो जाता है भाई। वहां से फीलिंग वाला गाना आ जाता है, वहां चुदा गया सिंडिकेट। कंटिन्यू। हाँ तो वहां चुदा गया सिंडिकेट ब्रो। और ऊपर से बंदे ने सीधा मूवी नहीं देखी, गलत बता रहा है। 2000 माल उठाया नहीं था, उठाने की बात चल रही थी उस टाइम पे। वो कह रहा था कि तुम इस जोन के हो, तुम उठा के लाओ, तुम इतना उठा के लाओ, तुम उठा के लाओ। उसमें से एक जो बंदा होता है, बिच्चा रेड्डी करके बंदा होता है, वो आके बोलता है कि भाई मैं मंगल सीनू के एरिया से मैं उठा के लाऊंगा। बाकी के लोग बोल रहे होते हैं मत जा भाई, उधर डेंजर है। पुष्पा बोलता है कि चले जा, वो बोल रहा है करना है तो कर ले। सो दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्लान्स बना रहे थे कि अभी तो उठाया ही नहीं था। राइटिंग कॉन्शियसली राइटिंग हुई है, सब लोग प्लान्स बना रहे थे और वो बस पूछ रहे थे कि यार इतना पैसा इतना ज्यादा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, हमें जानने का हक नहीं है क्या। तो पुष्पा बताता है कि सही गलत का टेंशन मत ले, वो मैं देख लूंगा करके, बस वो उतना बताता है। मीटिंग इज ओवर, दे आर लाइक कि दे आर स्पेक्युलेटिंग कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। एंड उसके बाद प्रॉब्लम होती है ना, जब वो बिच्चा रेड्डी को तेरा जो फहद फासिल का कैरेक्टर है शेखावत वो खत्म कर देता है, उसके बाद ही तो प्रॉब्लम शुरू होती है ना। तो है तो भाई सुकुमार राइटर है, उसने सब चीजों का ध्यान दिया है। सीन की प्लेसमेंट बड़ी कॉन्शियसली हुई है। मतलब अगर मैं समझ सकता था कि अगर जो उसकी भांजी किडनैप हो जाती है, भांजी किडनैप हो गई, उस टाइम पे अगर रश्मिका आके बोलती ना मेरे को फीलिंग्स है और फिर फीलिंग्स का गाना आता ना, तब इसका क्रिटिसिज्म मेरे को समझ में आता। एंड आई वांट टू गिव एन एग्जांपल। ब्रह्मास्त्र देखी है ना तूने? ब्रह्मास्त्र में क्या होता है, नागार्जुना की लाइफ खतरे में है, नागार्जुना की लाइफ को खतरे में है, तो ये रणबीर कपूर और ये बेसिकली आलिया भट्ट का केसरिया गाना बज रहा है। वो मैं समझ सकता, वो है ये सिचुएशन जिसकी तरह के ये कर रहा है कि भाई उसकी जान खतरे में है और ये घूम रहे, ये केसरिया तेरा इश्क है मेरा, और वो लड़की उससे लिटरली पिछले दिन मिली है। और ये अपना मस्त ये इसके साथ ट्रिप पे आ गई और ये केसरिया बांसुरिया बजा रहे हैं, पूरा इनका अपीजमेंट चल रहा है और फिर उसके बाद उनकी एक्शन सीक्वेंस हो रही है। दैट इज नॉट हैपनिंग हियर। ये वही है, मतलब यही होता है ना कि मूवी समझते नहीं है, स्ट्रक्चर समझते नहीं है, बकचोदी करना है। The conversation with the syndicate is done. Before he leaves, it's done. Okay, सुकुमार मेक श्योर कि कुछ बचाया नहीं है। तो अभी तक इसके रिव्यू में इस बंदे ने बात किया है, एक तो वो छपरी वाला वो बोला है, और दूसरा बोला है कि पीलिंग्स वाला सॉन्ग का उसने कोरियोग्राफी क्रिटिसाइज किया है, और फिर पीलिंग्स वाले सॉन्ग की प्लेसमेंट को क्रिटिसाइज किया है। मेरे लिए इस मूवी में द सॉन्ग प्लेसमेंट्स वर ब्रिलियंट। एवरी सॉन्ग प्लेसमेंट इज ग्रेट, इट डजंट फील आउट ऑफ प्लेस। इसको खत्म करके एक बार देखते हैं, इसने कोई ब्रह्मास्त्र की रिव्यू करी होगी। I want to see animal bro, I want to see animal. चल एनिमल भी देख लेते हैं, एनिमल भी कंपैरेबल है ना, देख लेंगे। चल आगे बढ़। हाँ बिकॉज वो विमेन एम्पावरमेंट भी है ना एनिमल में, बहुत देखते हैं। हाँ नहीं है भाई, 8 टन सैंडलवुड स्मगल करना होता है। आधी पिक्चर में तुम्हें यह बताएंगे, इतनी लंबी जो पिक्चर है कि इंटरवल के बाद खुद ही भूल गई है कि हमारे को तो स्मगलिंग करानी थी। वो चले जा रहा है, अगला हाफ भैया किडनैपिंग पे बन गया, सरनेम पे आ गया अगला हाफ।
हो गया ना, सैंडलवुड दे दिया उसने, हो गया खत्म। ऐसा तो है नहीं plot मिनिस्टर छोड़ दिया बदल इन लोगों दिया, ने। मतलब हाँ, मिनिस्टर सब हो गया बदल काम। दिया, और उसका अल्टीमेट जो वन लाइनर था कि उसको सीएम बदलना है, सीएम बदल दिया उसने। हाँ तो भूल कैसे गए, हो गया ना, खत्म कर दिया। वही ना, छोड़ो आगे चल, खत्म कर चूतिएगा। पुटिंग दिस आउट। हेलीकॉप्टर में चलते हैं गुटका राज साहब, ठीक है, बेल्ट तो वो हेलीकॉप्टर में लगाएंगे नहीं, गुटका राज उनको क्या होगा, वो मछली बन के आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। गर्दन काट सकते हैं। भाई मूवी की बात कर नहीं रहा। हेलीकॉप्टर में बैठ हाँ चल, हाँ दैट इज व्हाट इज नोटिसिंग। नहीं चल ठीक है, छोड़ भाई, हेलीकॉप्टर नहीं, जातरा सीक्वेंस की बात करना, देखते क्या बुराई करता है, उसकी गांड मार दूंगा मैं इसकी। अल्लू अर्जुन शायद काली माता को इंपर्सनेट करने की कोशिश करता है, वो सीन चलते चलते पूरा का पूरा वो होता है, उसके बाद भाई श्रीवल्ली गाने लग जाते हैं ये। मतलब अभी मंदिर के बीच में तुम सामने खड़े हो, बीचों बीच तुम एक पूजा पाठ वाली अर्चना कर रहे हो, बहुत अग्रेसिव डांस फॉर्म है वो काली माता का, और तुम वो करते करते वो अपनी बीवी के साथ नाच रहा है भाई, रोमांटिक सॉन्ग शुरू हो गया बीच में। भाई असली तुम्हारा माइंड तो ब्लो तब हो जाएगा जब तुम्हें पता लगेगा कि भैया जो स्मगलिंग कर रहे हैं हजारों की तादाद में। पॉज कर, मैं क्या कह रहा हूँ कि वही है ना, जातरा सीक्वेंस उसको समझ ही नहीं आया। या एग्जैक्टली, उसको ऑलरेडी हम how he dismissed it, look how he dismissed it, he's like हाँ वो कर रहा है, and then श्रीवल्ली आते हैं, वो कर रहा है, वो समझा क्या कर रहा है, समझ में आया तेरे को कुछ? उसको अभी लिटरली मैं अभी पूरा मैंने समझाया कि वो 18 मिनट सीक्वेंस, इट्स ऑल अबाउट पुष्पास लाइफ। मतलब तू ये सोच हाउ दैट सीक्वेंस एंड्स पूरा, कि अल्टीमेटली इतना सब कुछ करने के बाद उसकी जो दूसरी फैमिली है, जो स्टेप ब्रदर है, वो आके तब भी उसको शेम कर रहा है। एंड दिस इज व्हाट पुष्पा हैज बीन गोइंग थ्रू हिज एंटायर लाइफ सिंस ही वाज अ चाइल्ड। Yeah, but he didn't understand that entire sequence. He just thought कि वो पूजा कर रहा है and this, मतलब इसको लग रहा है कि यार रैंडम चीजें हो रही है। मैंने कहा इट इज नॉट रैंडम, तू कैरेक्टर के साथ कनेक्ट ही नहीं हुआ, तूने तो पहले ही डिसमिस कर दिया कि ये तो छपरी है। इसको समझ में नहीं आया क्या बता रहे हैं वो लोग, और वो बहुत ज्यादा हिंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई लेमन समझ ना पाए, तू नहीं समझा है ब्रो। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट एंटायर जातरा सीक्वेंस इज कि जब उसका वो स्टेप ब्रदर आके वापस उसको मतलब वापस उसको ऐसे शेम कर रहा है, राश्मिका लूजेस इट कि लाइक अब तेरे को बताती हूँ मैं क्या है करके। Now that you talk about it, this is Rashmika sharing his internal conflict, right? In this sequence, she is accepting that this is your problem. I accept it. I will dance with you to express your whatever you're saying. Okay, and that culminates into her monologue. Yeah, वही ना, Not getting it. This guy is not getting it. And also there is a cyclical thing. When the movie starts, we see Rashmika going to the temple and पुष्पा नहीं होता साथ में। जब वो स्टार्टिंग में उसके साथ प्रे करने जाती है, और तब भी वो स्टेप ब्रदर होता है, तो वो स्टेप ब्रदर उसको तब शेम कर रहा होता है कि अरे इसका तो सरनेम नहीं है, सो ही इज डिसरिस्पेक्टिंग राश्मिका उस टाइम पे भी। बट उस टाइम पे राश्मिका, उस टाइम पे वो कुछ नहीं बोलती। Yeah. उस टाइम पे शी इज काइंड ऑफ एक्सेप्टिंग इट, उस टाइम पे वो बेयर कर रही है उसको। बट फाइनली इस मोमेंट में जब वो प्रेग्नेंट हो गए और वो नेक्स्ट जनरेशन आ गई, और पुष्पा ने लिटरली उसकी बेटी की इज्जत लुटते हुए बचाई है, उसके बाद भी वो आके ऐसे कर रहा है राश्मिका इसलिए कि अभी तू रुक मैं तेरी बजाती हूँ करके, वो पूरी उसको पूरे भरी। भाई उस सीन में जो चीयरिंग हुई है ना, उस सीन में जब वो बोलती है ना कि पुष्पा, वो बोलती है कि जब वो पूछती है इस रैंडम पासर भाई से कि बता ये कौन है, बोलते हैं कि ये पुष्पा का भाई है, और फिर वो एकदम से वो बोलती है ना कि वो मेरा पति, ये है मेरा पति। भाई उस सीन में जो चीयरिंग हुई है ना, अमेजिंग चीयरिंग हुई है। सो दैट गोज टू शो दैट पीपल आर कनेक्टिंग विद द इमोशंस। अल्टीमेटली एक लाइक देयर इज अ पॉपुलर सेइंग कि इंडियन सिनेमा इज ऑल अबाउट सेंटिमेंट्स, राइट? Yeah. And this movie has a lot of sentiments. And what is sentiment ultimately? Sentiment is characterization. Because we are able to connect with the character, we are able to forgive these things. And जो कुछ भी ये चीज़ों से प्रॉब्लम है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। तू कनेक्ट नहीं कर पा रहा because you are close minded. You have closed your mind to these things, which is why you are not able to connect with anything. You're going into the film thinking कि I am way above. This is above my. Exact. This is this is below. This is beneath me. This is beneath me. Yeah, this is beneath me. Okay. वही उस मैं attitude से बढ़िया जा रहा आर्ट है। फिल्म्स वो रिव्यू करता हूँ। हाँ ये क्या चिपका दिया तुमने मेरे को, ये समझ भी नहीं। हाँ
तो हल्की सी बारिश पड़ी थी, इतना सा पानी भरा हुआ, निकल जाएंगे ऐसे। वो कह रहा मचा आके इन ब्रॉड डे लाइट श्रीलंका में टपा देते हैं थ्रू इंडिया। और कंगुआ कम से कम विजुअली तो अपीलिंग थी, लगता तो था कि उसको 2000 कंगुआ विजुअली अपीलिंग थी। मैं चाटा मार दूंगा, मेरा हो गया अब ये खत्म। इसका एड्रेस निकाल, घर जाके चप्पल मारना मैंने इसको। कंगुआ विजुअली अपीलिंग थी इसको। अरे भाई साहब, goes from Russia to Goa. चल भाई आगे बढ़ा। वो दिशा पाटनी आके वो बिकिनी में नाची होगी ना, वो इसका विजुअली अपीलिंग लगा है। हाँ, maybe. शूट किया हुआ है। इस पिक्चर को देखने ऐसा लगता है सेट मैक्स पे 2001 में आई थी टेलीविजन पे, अब इसको री रिलीज करा है 2024 में। पिक्चर खत्म ही नहीं हो रही, लोग दुखी हो गए थे। स्टोरी लाइन पे ढंग के एसएफएक्स और वीएफएक्स या एडिटर तक को नहीं बिठाया। इनको पता था कि What? एसएफएक्स का मतलब भी जानता है यार। एंड वेयर और ये क्या कह रहा है कि 2001 में सेट मैक्स में आई थी, पागल हो गया है क्या? कुछ ही बोला इसको। कंगुआ 2001 में आई थी। कंगुआ वाज दैट फिल्म। कंगुआ तो 1990s में आई थी, ऐसी मूवी थी वो। एंड दिस मूवी इज आयरॉनिकली सेट इन द 90s बट इट फील्स कंटेम्पररी। The tones of the film, the way it is shot, all of it is very innovative. बाप रे बाप भाई, ये कहाँ का छपरी है ये? पुष्पा की टट्टी नहीं, ये साला टट्टी इसके दिमाग में भरी है टट्टी। Hashtag. हम भागेंगे तो गुलकंद निकलेगा और खरीदेंगे लोग टिकटें। और एनर्जी में खरीद तो रहा है तू। मैं बता रहा हूँ, इसमें जो फीलिंग्स वाला गाना है ना, अगर वो बॉलीवुड में रहता ना तो इसको मैं बता रहा हूँ, इसको बस फीलिंग्स वाले गाने से प्रॉब्लम है और इसको उस पूरे गाने की भड़ास इसने पूरी मूवी पे निकाली है। That okay. 10 minutes are up. Okay, he's ranted like 9 minutes about 2-3 songs. That's it. It's just 2-3 songs. मतलब उसको आइटम सॉन्ग अच्छा है। नहीं, हाँ उसको आइटम सॉन्ग अच्छा नहीं लगा और उसको ये फीलिंग्स वाला सॉन्ग अच्छा नहीं लगा। He is not talked about the plot at all. फहद फाजिल के बारे में बात नहीं हो रही है। वो कितना कुछ नहीं बात करता है फिल्म, nothing. कुछ भी नहीं बात किया। अभी मैं पक्का बता रहा हूँ, एंड में बोलेगा अरे ये तो लोड़े पार्ट 3 भी निकाल रहे हैं, उसकी गाली पूरे के पूरे हमारी हेरिटेज खराब कर दी, हमारी संस्कृति भस्म कर दी। अब ये जब कर रहे हैं, एक स्मगलर को लिटरली ये करते दिखा रहे हैं, पाठ पूजा हर जगह पे ये हुआ है। पॉज करियो। संस्कृति भस्म कर दी। कंगुआ में दिखाया रोमन आए थे इंडिया में अपनी ट्रूप्स को ट्रेन करने के लिए, तब संस्कृति भंग नहीं हुई। तेरी पूरी हिस्ट्री की माँ चोद दी है उन लोगों ने। वो विजुअली अपीलिंग था। अपीलिंग्स है उसको। अपीलिंग्स है वही, उसको अपीलिंग्स है वो। बाप यार, संस्कृति भस्म कर दी। See, this is the face of a person who is biased because he keeps bringing on the same points just to extend the 10 मिनट का मार्क निकला है, थोड़ा पैसे आ जाए मेरे पास। हाँ एग्जैक्टली वही कर रहा है ये। ओके, आफ्टर दिस रिव्यू लेट्स वॉच अनदर रिव्यू। मुकेश खन्ना ने रिव्यू किया पुष्पा 2। ओह या, I saw it pop up in my feed but मैंने देखा नहीं। एंड दैट गाय इज जेन्युइनली प्रॉब्लमैटिक। मेरे को देखना है उस बंदे ने क्या रिव्यू किया है। Yeah, I probably did not like them. Let's see. ये खत्म कर लेते हैं। लेट्स सी। हाँ स्मगलिंग की डील करने आया, देश से चोरी करने आया, लेकिन वो पहले पाठ पूजा करेगा वो डील करने से। अब कहाँ? अबे जब लैट्रिन में हगने जाते हो तो नाक को बाहर रख के जाते हो, जब टट्टी करते हो तो बदल अपनी वीडियो में रोने लग जाते हैं, ये बोल के एक स्मगलर को बड़ा ही घनिष्ठ भक्त यानी कि हिंदू भक्त दिखा दिया। अब ये साउथ की फिल्म है, यहाँ पे लिटरली एक स्मगलर की सक्सेस के पैरेलल ड्रॉ करे गए हैं उसकी स्पिरिचुअल और रिलीजियस अवेकनिंग के साथ। लेकिन वो भाई को बहुत बढ़िया लगेगी ये पिक्चर। एब्सोल्यूट गार्बेज है। मैं पक्का बता रहा हूँ, ही इज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग की जो साउथ इंडियन मूवीज को सेलिब्रेट करता है ना, इसको उस चीज से प्रॉब्लम है। इसको मिर्ची लग रही है कि बॉलीवुड को ओवरटेक कर गई वो। साउथ इंडियन सिनेमा इज कनेक्टिंग विद द मासेस, वो इसको मिर्ची लगी है। Let's finish it. थोड़ा ऐसा ही है। खत्म ही हो गया। हाँ। 3-3.25 घंटे तुम्हारे को टॉर्चर होने लग जाएगा। फिल्म खुद भूल जाती है अगले हाफ में कि मैं पहले हाफ में क्या कर रही थी। तो भैया ये है गुटका राज का पुष्पा 2। जाओ पॉज करियो, कमेंट्स देखिए उसके। I saw this video before watching the film, and to be honest, I thought Shan is unnecessarily mocking and hating on movie. उसने खुद ही पिन कर दिया है कमेंट को। पर भाई आफ्टर वाचिंग द एम्बैरेसिंगली बैड मूवी आई वांट टू अपोलोजाइज टू इसलिए पिन किया। यू वर राइट, दिस मूवी इज अ जोक। इज दिस हाउ दे वांट टू रिप्रेजेंट साउथ इंडियन सिनेमा टू दिस वर्ल्ड? अबे तू कौन है? साउथ इंडियन सिनेमा का ठेका ले रखा है क्या तूने? ठीक है, दिस मूवी हैज
स्टॉप्ड द री रिलीज ऑफ इंटरस्टेलर इन, हाँ आ गए ये इंटरस्टेलर के चौदह, नहीं बात वही है ना, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, इंटरस्टेलर भाई री रिलीज करनी है, कभी भी हो जाएगी री रिलीज। स्टॉप किया है मतलब क्या, अब नहीं हो सकती, वो ऑफेंड हो गए क्या वो लोग? नहीं, अगर इंटरस्टेलर एक नई मूवी होती, अभी बनी होती 2024 में, और अगर पुष्पा ने तब उसको स्टॉप किया होता, आई वुड हैव अंडरस्टूड द सेंटिमेंट एंड आई वुड हैव अंडरस्टूड द एंगर। I'll close this particular podcast as the same way as I began. The movie is not a chhapri movie. The character of Pushpa is a chhapri character. That's it. Otherwise, this movie is technically as brilliant as Interstellar. I'll be controversial कि yes, जितना एफर्ट और जितना टेक्निकल ब्रिलियंस इंटरस्टेलर बनाने में लगा था, उतना ही प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, टेक्निकल ब्रिलियंस इसको बनाने में लगा है।